hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys might be doing really well. Anybody who has watched the previous video, अभी तक एक clarity आ गई होगी that we've already started with exam series. Episode 1 already निकल चुका है जहाँ पे हमने in detail discussion किया कि कैसे आप exam के एक दिन पहले without any holidays भी पूरी book का coverage लेके exam में जा सकते हो. Today we are going to discuss an extremely important topic. So hello everybody, this is Angi Sangvi. Welcome to episode 2 of exam series and today we are going to discuss in detail क्या मिस्टेक्स हमें 3 घंटे में अवॉइड करनी है, क्या डायरेक्शन होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए. बिकॉज वन थिंग विच इज़ वेरी क्लियर विच आई हैव अंडरस्टूड सो फार, पूरे साल भर की पढ़ाई कर ली आपने, एक दिन पहले की पढ़ाई कर ली, बट एट द एंड ऑफ द डे मार्क्स 3 घंटे के बेसिस पे ही मिलते हैं. So in this video, I'll share with you all what mistakes you should avoid and what should be your direction in general. So do watch the entire video till the end and all your doubts are majorly covered in today's video. In case if you are new to my channel, do subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss any update. I just hope you guys are aware that a lot of times जो भी grace marks मिलते हैं on account of moderation वाले marks मिलते हैं, that is because of good and decent paper presentation. Trust me, a lot of my papers got extra 4 or 5 marks just because the paper presentation was good and decent. And understand 3-4 mark अगर आप हर subject का जोड़ दो, it can be a matter of pass and fail. It can be a matter of change in rank if you are already expecting for a rank. Understand these few things and try to incorporate them in your paper. पहले तो पैरा फॉर्मेट में लिखना छोड़ दो, बहुत डिफिकल्ट होता है समझना कि क्या बोलना चाह रहे हो आप. हर चीज़ को पॉइंट फॉर्मेट में लिखना स्टार्ट कर लो. until and unless it is too much required for that particular answer, put pointers. Second most important thing is quote the section only if you are very confident. अगर आपको नहीं पता है कि इस चीज़ का यही सेक्शन नंबर है, ignore it, write as per the relevant provisions. और अगर आप confident हो उसको highlight करके आओ. Act को highlight मत करना, but section number you can highlight. And understand that if you know the keywords of all the 5 pointers, हर चीज़ का कीवर्ड को अंडरलाइन करके आओ ताकि उसको कीवर्ड भी तुरंत दिख जाए और पता चले कि नहीं इसको कीवर्ड्स भी अच्छे से पता है. Third most important thing, if you come on to the question of sequencing, write in any sequence you want, does not matter honestly. Part A चालू किया तो पहले पूरा part A खत्म करो and then go on to part B. If you started with part B, complete that and then go on to part A. Understand one very important thing which I am trying to tell you is अंदर का सब sequence आप change नहीं कर सकते हो. सब questions का sequence आप क्यों change करना चाहते हो and उसमें कोई और main question का सब question मत डालना. Third most important thing is coming to the question of what should be the ideal length. कितना कंटेंट ऑन एन एवरेज 5 मार्क के आंसर के लिए लिखना चाहिए. नाउ इफ आई शेयर विथ यू ऑल, नन ऑफ माई आंसर्स ऑफ ऑन एन एवरेज ऑफ 5 मार्क्स, दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग, वेंट अबाउट 1.5 पेजेस. नाउ आई हैड वन पर्टिकुलर थिंग वेरी क्लियर इन माई माइंड कि मेरे लिए पहली प्रायोरिटी है पूरा 100 मार्क का पेपर लिखना. सो विद दैट एस्पेक्ट आई हैड अंडरस्टूड कि हर आंसर को एक पर्टिकुलर टाइम पे खत्म करना ही पड़ेगा वरना पूरा 100 मार्क का पेपर लिख के नहीं हो पाएगा. आई अंडरस्टूड दैट थिंग एंड विच इज़ वाई 1.5 पेज में आई यूज टू ट्राई कि उसको जो भी चीज़ चाहिए वो मैं केटर करूँ, जो भी कीवर्ड्स चाहिए वो मैं लिख के आऊँ. सो वन सिंपल आंसर टू दिस थिंग इज यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू यू, बट जस्ट अंडरस्टैंड आपको कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, कुछ कम नहीं लिखना है. राइट वॉट इज़ रिक्वायर्ड, वॉट इज़ आस्क्ड, what they expect from you. This is one very important thing because a lot of times what happens is if we know one particular answer very nicely, ऐसा होता है कि हम 2, 3, 4 पन्ने भरते ही जा रहे हैं and eventually you will have to miss on to the next answer. अभी एक बात ये समझ लो, ये आंसर भी 5 मार्क का था, जो छोड़ा आपने वो भी 5 मार्क का है एंड इवेंचुअली ये 5 मार्क का तो आपने लिखा ही नहीं है, उसके मार्क्स मिलने से आप भूल ही जाओ. एंड योर वॉट यू रिटन सो नाइसली, हो सकता है 3 मार्क मिल रहे तो 4 मिले, 4 मिले तो 5 मिल सकते हैं, but you've missed on to something else, which is why it is extremely important that you need to time yourself with a particular limit. Second most important thing is handwriting does not matter, but it has to be legible. उसको समझ में आना चाहिए. And understand one very important thing that if you can try to keep your paper neat and clean, it can be a lot better. हर पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़ो. अगर नया आंसर आ रहा है तो नए पेज पे स्टार्ट करो. मेन सब क्वेश्चन चेंज हो रहा है तो नए पेज पे लो. सो ऑल ऑफ दीज स्मॉल थिंग्स मैटर अ लॉट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको आपका पेपर देखना अच्छा नहीं लगेगा, यू रियली थिंक दैट द पेपर चेकर वुड लाइक टू चेक दैट, डोंट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ कैंसिलेशन. वन थिंग इज डोंट सेकेंड गेस, डोंट डाउट योर सेल्फ सो मच. लिखने के बाद पैनिक की सिचुएशन में होता है, until and unless you feel सच्ची में गलत है कैंसिल करो. बट अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कैंसिलिंग डज नॉट गिव अ गुड इंप्रेशन एट ऑल. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस विथ थियोरी, कैंसिलिंग तभी होता है जब आप सोचे बिना बस लिख रहे हो.
तो 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम मिल रहा है ना, उसमें पहले आप सोच लो कि क्या कीवर्ड्स है। कोई आजू बाजू देख नहीं रहा है तो हल्का सा, एकदम हल्का सा लिख दो कि ये आंसर का ये कीवर्ड है, ताकि आप लिखने जाओ तभी आपको याद आए ना आए, यू वुड समवेयर गेट अ लिंक ऑफ राइटिंग, ताकि आपका सोचने में टाइम ना जाए, फिर जो भी टाइम है आपको लिखने में टाइम डालना पड़े। इफ इट्स वेरी स्ट्रिक्ट, एटलीस्ट रिकॉल 15 मिनट का जो भी टाइम मिल रहा है उसमें रिकॉल कर लो कि क्या पर्टिकुलर कीवर्ड्स है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर आंसर में। सो अकॉर्डिंग टू मी दीज फ्यू थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। 100 मार्क का पूरा पेपर आपके हाथ में नहीं होगा, 80 मार्क्स वुड बी डिसेंट इनफ, बट 10-20 मार्क आप कैसे लिख के आते हो, अ लॉट डिपेंड्स ऑन दैट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम में कैसे हम मैनेज करें। अब एक बात समझ लो, जितना इंपॉर्टेंट 3 घंटे का आपका टाइम है उतना ही इंपॉर्टेंट ये 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम है। सो अंडरस्टैंड दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये कुछ चीज़ें करो जिससे आप यूटिलाइज कर सकते हो उसको बेस्ट वे में। उसके लिए पहले इंश्योर कर लो दैट यू रीच द एग्जाम हॉल ऑन टाइम, बिकॉज ये 15 मिनट भी एक पार्ट ऑफ योर पेपर ही है, तो उसको लीनियंटली मतलब उसको सीरियसली यूज़ करो। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव अंडरस्टूड, क्वेश्चन 1 I used to feel always is comparatively more difficult compared to the remaining part of the paper. इसका एक सिंपल लॉजिक है, स्पेशली व्हेन द पेपर इज लिटिल एक्सेप्शनल। द सिंपल लॉजिक इज क्वेश्चन 1 थोड़ा टफ डालो ताकि इंसान पढ़ते ही थोड़ा डाउट में आ जाए, थोड़ा हड़बड़ी में आ जाए, पैनिकिंग स्टेट में आ जाए। इसीलिए मेरे हिसाब से क्वेश्चन 1 आप स्किप कर लो पहले। अगर आप ये बात समझ लो दैट क्वेश्चन 1 इज अ मैंडेट क्वेश्चन, आपको आए ना आए आपको वैसे भी लिखना ही है, तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा टाइम 15 मिनट में डालना, आई डू नॉट फील इट्स दैट वर्थ इट। जस्ट ग्लैंस इट क्विकली इफ यू वांट एंड देन गो ऑन टू द ऑप्शनल क्वेश्चंस। यहाँ पे सबसे पहले जस्ट अंडरस्टैंड आपके लिए क्या एलिमिनेट करना है आपको। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ना कि आपको क्या करना है 3 घंटे में, एटलीस्ट अंडरस्टैंड एंड बी वेरी सर्टेन अबाउट आपको क्या नहीं करना है। व्हाट डू आई मीन बाय दिस, अगर एक मेन क्वेश्चन है उसके सारे सब क्वेश्चन आ रहे हैं, गो फॉर दैट, बट द मेन प्रॉब्लम विल बी व्हेन यू वुड नॉट नो मेन सब क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन और एनीथिंग। अगर यहाँ के 2 नहीं आ रहे, यहाँ के 3 नहीं आ रहे, यू हैव टू एलिमिनेट द 3 ones। सो बाय एलिमिनेटिंग समटाइम्स यू विल अंडरस्टैंड कि आपका एक्चुअली लिखना क्या है। ये सब आपको 15 मिनट के रीडिंग टाइम में करना है। नाउ समवन वुड आस्क दैट इफ यू डोंट नो 2 आंसर्स फ्रॉम योर एंड 2 फ्रॉम योर, देन यू हैव टू गो विथ योर गट कि आपको कौन सी चीज़ में आप बेहतर तरीके से लेके आ सकते हो, कौन सी चीज़ का केस स्टडी आपको ऑलरेडी समझ गया है, देन यू हैव टू गो विथ योर गट। बट personally preferably when I used to solve papers I used to go for optional which are numerical based, because उसमें जो लिखा है उसका मार्क्स उसको देना ही पड़ेगा। जैसे कि सेबी हो गया तो सेबी में न्यूमेरिकल्स आते थे, कॉर्पोरेट फंडिंग हो गया, सीआर का पेपर हो गया, तो ये सारे पेपर में न्यूमेरिकल्स आते थे। आई यूज्ड टू पर्पसली अटेम्प्ट दैट, बट ओनली इफ यू आर वेरी श्योर देन ओनली अटेम्प्ट दैट, अदरवाइज यू कैन गो विद द थियोरी क्वेश्चंस। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सीक्वेंस और ऑर्डर, जो भी आपका वो डिसाइड कर लो कि कौन से ऑर्डर में पेपर लिखना है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको पहले ही वो पेपर में जो पूछा है वही लिखने का। स्टार्ट विद द क्वेश्चन यू आर मोस्ट कॉन्फिडेंट अबाउट, ताकि उसको पढ़ते ही समझ जाए दिस स्टूडेंट इज नॉट योर फॉर एनी जोक, उसको पहला क्वेश्चन देखते ही समझ जाए कि नहीं उसको आता है। सो स्टार्ट विद द क्वेश्चन दैट यू आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट। सो अकॉर्डिंग टू मी 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम में एटलीस्ट ये 3 चीज़ भी आप कर लो ना, तो आपका एग्जीक्यूशन पे फिर जो भी टाइम जाएगा वो जाएगा, आपका प्लानिंग में टाइम नहीं जाएगा, सोचने में टाइम नहीं जाएगा। सो you have to utilize these 15 minutes very effectively. One of the students had just messaged me asking that quality matters या quantity matters, and उसने ऐसे ही बोला कि मैं 80 मार्क का quality लिख देती हूँ because my speed is not that good. I don't want to take the haste and burden of writing entire 100 marks का paper. So a very simple clear answer to this is understand it is a bare minimum. Bare minimum है आपको 100 मार्क का पेपर लिख के आना ही है। Now I'll tell you what happens. A lot of times what you feel is quality wise good content. You never know if the institute is actually feeling it the same way. उसका रिस्क आपको लेके क्यों चलना है? आप पहले से ही समझो कि आपको पूरा 100 मार्क का लिखना है, उसी माइंडसेट से जाओ कि मेरे को कैसे भी करके पूरा 100 मार्क का पेपर लिखना है। ऑप्शन ही नहीं है कि आप सोचो कि मैं थोड़ा कम लिख दूँ, बिकॉज सी व्हाट हैपेंस इफ आई ऑनेस्टली टेल यू, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में क्या होता है ना, इफ़ यू रिटन थिंग्स राइट, इफ एवरीथिंग इज राइट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन का कट कर सकते हैं मार्क्स, बट दे हैव टू गिव यू राइट। बट व्हाट हैपेंस विद थ्योरी पेपर पर्टिकुलरली इज देयर सम लेवल ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व। हमारे माइंड में हमें जो लग रहा है इंस्टीट्यूट के माइंड में भी वो लगना ज़रूरी नहीं है। सो व्हाई डू यू वांट टू टेक दैट रिस्क? एट द एंड ऑफ द डे आप अगर कोई चीज़ छोड़ ही रहे हो तो उसका तो कोई स्कोप ही नहीं है कि उसके कुछ भी मार्क्स मिलेंगे। बट इवन इफ यू डोंट नो दैट आंसर, इवन इफ यू आर अनश्योर ऑफ दैट पर्टिकुलर आंसर, एटलीस्ट राइट इट। लिखा होगा देन देयर इज एनी स्कोप। अंडरस्टैंड व्हेन यू राइट पूरा 100 मार्क का पेपर,
उसमें से क्वालिटी कंटेंट इज ओनली 80 मार्क्स, दैट के ऑल नो। उसके बाद आप समझो थियोरी पेपर है, वो चेक होकर आपके हाथ में आ रहा है, दैट्स नियरली व्हेन यू गेट 50-60। एंड इफ़ यू वांट एग्रीगेट आपका निकले अराउंड, आपको हर पेपर में इतना टारगेट करना पड़ेगा, सिर्फ 40 से कुछ नहीं होने वाला। सो दिस इज माई पर्टिकुलर रीजन वाई आई एम एनफोर्सिंग सो मच। क्वालिटी डज मैटर, इफ यू डोंट गिव द कीवर्ड्स दे वांट, नथिंग मैटर्स। आपने इतना पेपर लिखा है उसका कोई मैटर नहीं करेगा, बट अंडरस्टैंड राइटिंग 100 मार्क्स ऑफ पेपर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। वो ऑप्शनल नहीं है, दिस इज अ बेयर मिनिमम दैट यू हैव टू टेक इन योर माइंड। पहले मिनट से आपकी स्पीड ऐसे रखो, हर आंसर को ऐसे टाइम करो कि आपका पूरा 100 मार्क का पेपर कंप्लीट होना ही चाहिए कैसे भी कर। So I don't know a lot of students even do this calculation. When I was a student, I did this calculation कि मैक्सिमम हर आंसर को कितना टाइम दे सकते हैं, मेन आंसर को कितना दे सकते हैं, सब आंसर को कितना दे सकते हैं। बिकॉज मेरे हिसाब से 3 घंटे में ये सारी चीज़ करने का आपके पास टाइम नहीं है। ये सब अभी से प्लान करो, नहीं आपके पास 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम ऐसा है कि आप उसमें ये सब चीज़ों में वेस्ट कर लो। सो दिस इज़ वन कैलकुलेशन विच आई हैड मेड। किसी को भी डाउट है कि कैसे अगर हम डिवाइड कर सकते हैं, सो दिस इज़ वन थिंग विच आई हैड मेड, वन टाइम टेबल विच आई हैड मेड। तो मेरा एकदम फोकस क्लियर था कि मेरे को पूरा पेपर लिखना है। अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन वी कंप्लेन कि पेपर नहीं हो रहा है इज ऑल्सो बिकॉज हम टाइम को रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। वो टाइम जितना एलोकेट किया उतने टाइम में होना ही चाहिए। अगर आपका 1 मिनट भी ज़्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप समझ लो आगे आपको दिक्कत आने वाली है। बाकी के आंसर्स के लिए इवेंचुअली कम टाइम बचेगा। सो व्हेन विल यू अंडरस्टैंड दिस, इट इज़ ओनली व्हेन यू डू दिस मार्किंग स्कीम। आप यहाँ से एक क्लैरिटी लेके जाओ कि मैक्सिमम मेरे पास 5 मार्क के आंसर के लिए इतना ही टाइम है, 4 मार्क के लिए इतना ही टाइम है। वो टाइम में ट्राई टू complete that answer. In any case, if you don't, there's a very likely possibility you will not be able to write entire 100 marks paper. तो ये कैलकुलेशन मैं शेयर कर रही हूँ, उसको आप रेफरेंस लेके गिनो। और आपका बस एक ही फोकस होना चाहिए, एक फोकस आपका पेपर पे, दूसरा फोकस आपका क्लॉक पे होना चाहिए, वॉच पे होना चाहिए, ताकि आप आपने जो टाइम सोचा है वो टाइम पे आप उस चीज़ को कंप्लीट करो ही करो। सो डू दिस कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू मी, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आई डोंट थिंक कोई करता भी है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू अड्रेसिंग टू द प्रॉब्लम कि काफ़ी बार हमें लिखते टाइम पेपर में आंसर्स याद ही नहीं आ रहे। अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट हैपेंस बिकॉज एग्जाम का माहौल ऐसा होता है और पैनिक होता है थोड़ा, इसलिए याद होते हुए भी हमें उस टाइम पे याद नहीं आता है कि ये कहाँ का आंसर पूछा हुआ है। तो इन दिस केस जस्ट काम योर सेल्फ फॉर 2 seconds एंड क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू रिकॉल पहले तो ये कौन से चैप्टर से पूछा हुआ है। एक बार खुद को पूछ लो, चैप्टर क्लियर हो गया कि यहाँ से पूछा हुआ है, उसके बाद गो मोर डीपर इनटू थिंकिंग ये कौन से कॉन्सेप्ट से पूछा हुआ है। आई कैन टेल यू ये प्रेशर में होता है, बट इफ़ यू डू दिस एक टाइम के बाद आपको पेजेस भी आपके सामने दिख के आएंगे कि ये कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ था, ये चीज़ उन लोग ने ऐसे फ्रेम करके पूछी हुई है। दिस हैपन्स व्हेन यू आर इन अ स्टेट ऑफ पैनिक, जो कि 3 घंटे में होना बहुत ज़्यादा नेचुरल है। एंड योर इफ इट इज समथिंग जो आपको जेन्युइनली बिल्कुल भी नहीं आता है, बट योर यू जस्ट वांट टू राइट इट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग एंटायर 100 मार्क्स का पेपर, योर इफ यू डोंट नो एग्जैक्टली क्या है उसको छोड़ो मत। वो कॉन्सेप्ट के आगे पीछे का आजू बाजू का जो आ रहा है एटलीस्ट लिख के आओ। लिख के आओगे तो कुछ तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं ना। सो योर वन टिप इज आई टोल्ड यू दैट राइट एवरीथिंग इन पॉइंट फॉर्मेट, बट यहाँ पे इफ यू आर नॉट सो श्योर write in para format, it is okay, write in para format, but keep it neat and clean. So these are the few things that you can do, तब आपको recall भी शायद हो जाएगा अच्छे से। So I hope this video has helped you all in some way at least, and I hope to see you soon with another video. If you have any other video suggestions, you can mention in the comments. I'll try to help you with that. Until then, just study well. कुछ stress लेके मत पढ़ना, बहुत कम दिन बचा है, I know, and stress is very natural. But you have to understand you will do your best and God is going to take care of the rest. Until then, study well. I'll soon see you guys with another video. Bye bye.